এটা খেয়াল করেন, এখানে টার্নিং পয়েন্ট কিন্তু যদি নো করে তাহলে কি হবে? देखिए सेंसस में अभी कहा कि डॉक्यूमेंट का कोई चेक नहीं करेगा। सेंसस में ये सब माने कि इस तरह की स्क्रूटनी नहीं होती है और उसका उसका एक अलग मैकेनिज्म है और उसमें हम लोग इस सेंसस में इसको नहीं देखते हैं। इसका मतलब भारत में जो जो रह रहा है उसका हिसाब आप सेंसस में करेंगे। जो भी पॉपुलेशन हमारी टेरिटरी में है उसके जो फीचर्स सेंसस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। Approximately 2,500 people are directly involved in all census operations in the first phase itself, and the experience of first phase it might get increased in the second phase, but in the first phase approximately 2,500 individuals, government officials are being involved. Only houses. Household survey. In first phase we will go household survey that consists of marking the household and on the basis of certain criteria there is a questionnaires, means the kacha house, pakka house, whether the house has a gas cylinder or not, electric connection or not. These are certain questionnaires. So we will go for a household survey in the first phase, and in the second phase we'll get the information from the person, that what is his age, how many children he have, or what is his caste, what is what means the personal parameter of the persons. So first we will go for the household survey and second we go for the individual information. This caste survey is taking place after how many years? 31 it was last. 31 online 31. It was 1931 the last I think census as per the director census. Pre-independent. Pre-independence. Pre-independent. So how really helps when a caste census basically? What is the aim behind it? Because there will be some इसका अभी SIR भी चलने वाला है। इंडिपेंडेंस के बाद कभी बना ही नहीं caste census. शुरू करें, बताइएगा आप लोग हैं। ये जो चार्ज ऑफिसर है, माने जो ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हेड करेंगे इस ऑपरेशन को, सेंसस ऑपरेशन को, इन लोगों को एज अ मास्टर ट्रेनर क्रिएट किया गया है। जो HLO मतलब हाउस लेवल जो सर्वे होगा उसमें जो इनोमरेटर और सुपरवाइजर्स होंगे उनको ट्रेन करेंगे। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे प्रोसेस की, जिससे हम लोग सेंसस की जो कार्यशाला है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। Tentatively, I think you will speak only about the district now. Tentatively, what will be the number those who will be involved in the entire process? Because it's a big. Holding this caste is how it really helps in formation of the policies. Actually, in many policies, particularly the policy related to social justice, caste is an important aspect. So, Government of India and any government, state government is bound to provide social justice to his citizens. So, this caste census will help to get policy making, particularly related to upliftment of the caste and social justice to be provided. Does it also involve the economic condition of the population in that? Yes. Socio-economic and the caste also. Socio-economic status of all such stakeholders will be taken considerate, and accordingly the policy will be formulated. ঠিক আছে না, যখনই বলবে সেলফ এনভার্সন আইডেন্টি সেলফ এনভার্সন হয়েছে তখন কি হবে দেখেন 7 নম্বরে চলে যাচ্ছে। এখানে একটা কথা হচ্ছে, উনি তো টাইপ করবে সেলফ এনভার্সন বলেছে, আমি করেছি, ওনার থেকে নাম্বারটা নিলাম, নাম্বারটা নিয়ে ये देखिए दोनों ही सेंसस और SIR के अलग इम्पोर्टेंस है, और दोनों का जो गैप है, इनोमरेशन का जो गैप है वो सफिशिएंट गैप है, क्योंकि जो SIR का काम है वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, और जो सेंसस का काम है ये मेजर काम फरवरी में होगा। तो इन दोनों में कोई इस तरह का वो क्लैश नहीं है।
दूसरा हम अपनी तरफ से चाहे वो इनोमरेटर और सुपरवाइजर्स के लिए वो जॉब हो या आम नागरिकों के लिए भी हो, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो सहूलियत हो वो लोगों को दी जाएगी। और हम अवश्य ये एश्योर करेंगे कि किसी को कोई भी हो, चाहे वो सुपरवाइजर इनोमरेटर हो अथवा वो आम नागरिक हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सर ऐसा भी जगह है जहाँ जंगल है, जाने के लिए बहुत गाड़ी जाता भी नहीं है, उधर आप लोग क्या कवर करेंगे या कैसे रहेंगे? एक्चुअली हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे काफ़ी बिलीफ है, क्योंकि हमारा जो वोटर लिस्ट है वो लगभग 100% है एज पर इनोमरेशन। और हम कई हमारी स्कीम्स जो हैं वो एकदम चाहे वो वैक्सीनेशन की स्कीम हो, चाहे वो मलेरिया रिलेटेड स्क्रीनिंग हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पहुंचा हुआ है। और इनोमरेशन में भी हमें उम्मीद है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं ये हर एक उस पहलू तक, हर एक उस अंतिम आदमी तक पहुंच पाएंगे, चाहे वो जंगल या कहीं हो, और हम उस डाटा को ऑब्टेन जरूर कर पाएंगे। इसके एश्योरेंस आप कैसे दे सकते हैं कि 100% होगा? इसकी चेकिंग है, माने कि मल्टीपल स्टेजेस पे इसकी चेकिंग है। पहले न्यूमरेटर है, फिर सुपरवाइजर है, फिर हम लोग डाटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पास और सेकेंडरीज डाटा हैं, जैसे इलेक्शन का डाटा है या वैक्सीनेशन का डाटा है या ROR है ऑलरेडी, जो हम लोग ऑन हर कंटिन्यूस बेसिस पे क्रिएट करते हैं। तो इस डाटा से कंपेयर करके हम इस बात को जरूर श्योर कर सकते हैं कि हम 100% लोगों तक पहुंच जाएंगे। जियो पोजीशनिंग एनीथिंग लाइक दिस? हाँ, इसमें तो जियो स्पेशल पोजीशनिंग है ही, ठीक है। और ऑलरेडी जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम भी है, जैसे सेंसस का हमारे पास तो ऑलरेडी ROR रजिस्टर्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी आधार का डाटाबेस है। तो हमारा जो ये लिस्ट है ये कई सेकेंडरी डाटा से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है बाकी प्रोग्राम्स में, कि हम ज़्यादातर मतलब लगभग 100% लोगों तक पहुंच जाते हैं इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। और जैसे इलेक्शन का एक मैं बात कहूँ तो इलेक्शन में हमारा जो वोटर ID है वो एज पर जो प्रोग्रेस जो पॉपुलेशन का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वहाँ तक पूरा पहुँचा हुआ है। तो हम बिलीव कि हम इजीली पहुँच जाएंगे। जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं उन लोगों के पास आप कैसे? ये सच है, मैं तहकीक खातिर नहीं बोल रहा, दिस इज फैक्ट। नहीं, आपसे सीख के इस पे कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए ये तो जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं ये तो सभी स्टेक होल्डर्स को लेके करते हैं। और लकीली क्या है कि सेंसस में किसी तरह के ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम, क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें हैं, हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो भी लोग इस सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, उन सबसे बात करके ही पहुंचेंगे। और हम इसमें किसी भी तरह के, मतलब आपके माध्यम से मैं बताऊं कि हम किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं मांगते हैं। उल्टा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस अगर किसी के पास कोई सर्विसेज नहीं पहुंच पाती किसी डॉक्यूमेंट की कमी से, तो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ में भारत की जनगणना होने जा रहे हैं, तो यहाँ में जो इलीगल इमिग्रेंट्स का भी बात चल रहा है इसके बारे में ज़्यादातर, तो इससे आज हम आप सभी के साथ सेंसस की एक कार्यशाला में आए हैं, जो सेकंड फेज ऑफ ट्रेनिंग का फेज है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मींस डायरेक्टर सेंसस की तरफ से पूरे वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कराया जा रहा है। और ये जो सेंसस ऑपरेशन 2027 हम इसको बोलेंगे, ये स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2026 टू 30 अगस्त 2026। हाउस लेवल हाउसिंग सेंसस होगा, मींस हाउस लेवल ऑब्जर्वेशंस की HLO सेंसस होगा। और सेकंड फेज जो है वो बाय मार्च तक कंप्लीट करना है, जो हाउस टू हाउस क्वेश्चनर बेस्ड इन्यूमरेशन होगा। तो फर्स्ट फेज जो 1 अगस्त से है, उसके लिए हमने सभी हमारे चार्ज ऑफिसर
और इनोमरेटर्स और सुपरवाइजर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जो मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट करने के लिए कार्यशाला बुलाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसमें इस बार सेंसस में है कि इस बार सेल्फ इनोमरेशन, माने कि जो घर के जो एडल्ट हैं, जो घर के जो हेड है, वो खुद भी 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से सेंसस की अपनी इंफॉर्मेशन सरकार के साथ या सेंसस डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसका एक डिटेल जो वीडियो है वो यूट्यूब पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू या PIB के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ज़रूर एक बार देखें। साथ ही साथ ये कास्ट सेंसस भी है, तो इसमें जो क्वेश्चनर्स या इनोमरेशन मार्च में होगा उसमें इसकी डिटेल भी दी जाएगी। और क्वेश्चंस भी जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि जून जुलाई तक जो क्वेश्चंस हाउस होल्ड सर्वे एवं इनोमरेशन में किए जाएंगे वो डिसाइड हो जाएंगे। यूजुअली ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें हमें सभी डिपार्टमेंट का सहयोग चाहिए। खासकर जो लोग हमारे इनोमरेटर हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आएंगे, उनका सहयोग और आम आदमी का सहयोग चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो सरकार के साथ शेयर करें। जो नेक्स्ट एटलीस्ट 1 डिकेड और मल्टीपल डिकेड्स में सरकार जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड, उसमें ये डाटा हमारे काम आएगा। और साथ ही साथ कई पहलुओं में, डेवलपमेंट के पहलुओं पे भी ये सेंसस का हमारा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ये हमारे काम आता है। और किसी भी इंफॉर्मेशन देने से घबराएं नहीं, क्योंकि एज पर सेंसस एक्ट 1948 ये सारा जो डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, ये कॉन्फिडेंशियल है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं होता है। और केवल स्टैटिस्टिकल डाटा जो पॉलिसी के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन ही हम लोग पब्लिक डोमेन में या पब्लिक पॉलिसीज में यूज़ करते हैं। तो बिना किसी डर के आप जो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो इनोमरेटर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सभी का सहयोग कर सकते हैं। आज का जो ट्रेनिंग है इसका मुख्य उद्देश्य ঠিক আছে, শুধু আমি সেন্সাস হাউস